Welcome in DK Education. Hello students, good morning to all of you. Here myself, DK sir from Saraswati Vidya Mandir, Lakshmi Nagar, Sitamarhi. We all are in class 9th of physics. I had given some questions in previous classes, numerical problems based on speed, time and velocity acceleration. Some comments came on my WhatsApp. The first one I could not understood sir, the second one I could not understood sir, and so on. So I decided to solve the question, total question in this class today. Okay, the first question I am going to read. You listen mentally. A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square. If we have remember the unit of the physical quantities, then we can easily solve all the numerical problems in physics. First of all, we have to see here what quantities are given here. The first one 0.1 meter square, meter per second square. For the first question आप ध्यान से सुनिए. A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square. Clearly A is equal to 0.1 meter per second square. And the second step, for 2 minutes. For 2 minutes it means time is also given. T is equal to 2 minutes. 2 मिनट समय दिया हुआ है. अब ये समय जो दिया हुआ है 2 मिनट, इसको पहले हम चेंज कर लेंगे कौन सी में, सेकेंड में. तो 2 into 60 सेकेंड, because the unit of time is refers in second. So 2 into 60 is equal to 120 second. Okay. After that find the speed and distance. Speed and distance traveled by the bus. Now in first case, there are two cases in this question. In first case, we have to find out the speed of the bus. So we use the v बराबर u प्लस at. u प्लस at का हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला से v निकालना है हमको. फाइंड द स्पीड एंड डिस्टेंस. पहले स्पीड हम निकाल लेंगे. v है u इक्वल टू 0. u इक्वल टू 0 क्योंकि रेस्ट से मूव करना शुरू किया था, इसलिए u इक्वल टू 0. आफ्टर दैट यहाँ पर हम 0 डाल देंगे. यहाँ पर 80 है, 80. अब a की जगह पर हमको डाल देना है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इंटू t की जगह पर डाल देना है 120 सेकेंड. अब इस दोनों को हमको मल्टीप्लाई कर देना होगा. मल्टीप्लाई करना होगा तो लगभग ये 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड. ये v बराबर हमारा, ये हमारा आंसर होना चाहिए. वैसे आप मल्टीप्लिकेशन करके इसको देख लेंगे, सिंप्लीफाई करके. आफ्टर दैट in second case distance traveled by the bus. For the distance we use the formula s is equal to ut plus half at square. Half at square. Now we have u is equal to 0 plus 0 into t. T 120 second plus half into at square. For a we use here 0.1 meter per second square into a into t 120 सेकेंड. इसको स्क्वायर कर देना है. ओके, मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर देना है. 0 से मल्टीप्लिकेशन किए 120 में, दैट विल बी 0. आफ्टर दैट 0.1 into 1, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन 2 into 120 सेकेंड स्क्वायर. 120 के सेकेंड स्क्वायर 120 गुना 120 कर दीजिए. ओके, यहाँ से इसको कट करेंगे 60 टाइम.
इसको हम पोस्ट में रख दिए। अब 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 60 इंटू 120, लगभग ये 720 मीटर के आसपास इसका आंसर आपको आना चाहिए। वैसे सिंप्लीफाई करके आप देखेंगे कि इतना आता है कि नहीं, फिर उसके बाद हमको कमेंट करेंगे। आफ्टर दैट द फर्स्ट क्वेश्चन, वन टाइम आई एम गोइंग टू ऑल्सो रीड। A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed and distance traveled by the bus. In first case, we have A is equal to 0.1 meter per second square, U is equal to 0 and T is equal to 2 minutes. Convert the value of T into second and we use the formula V is equal to U plus AT, and the second case we use the formula UT plus half AT square is equal to S. Okay. After that, the next question is, a train is traveling at a speed of 90 km per hour. 90 km per hour. 90 km per hour traveling. First, in second question, 90 km per hour we convert in meter per second. So this is equal to 90 into 1000 meter upon per hour, it means 60 into 60. पहला काम इतना हम कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में इसको चेंज कर देंगे। आफ्टर दैट जो वैल्यू आए उसके बाद करना है अप्लाई 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A is equal to B use minus 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A is equal to हमको इतना यूज कर देना है। फाइंड द हाउ फार विल द ट्रेन, इट मीन्स यहाँ हमको S निकालना है। S is equal to what? Time is not given here, so we use the formula V square minus U square is equal to 2S। इस फॉर्मूला पर रख करके इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, जो निकलेगा शायद इसका आंसर होना चाहिए 625 मीटर। अगर नहीं आया आंसर तो फिर उसको आप कमेंट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, उससे बात करेंगे, मैं आपको समझा दूंगा। नाउ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज सम कॉम्प्लिकेटेड। लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर। ए स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। हियर we see, यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से एक अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर की तरफ एक पत्थर को उछाला जाता है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और A इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते समय व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल द टेक टू रीच देयर। अब इसमें टाइम निकालना है और इसका हमको क्या निकालना है, भी निकालना है। अब इसमें हम ध्यान देते हैं कि A इक्वल टू हमारे पास दिया गया हुआ है क्वेश्चन फिफ्थ नंबर के लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ध्यान देना है। अब ए स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स V इक्वल टू हमारा हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, गिवन हो गया। After that, if the acceleration of the stone during its motion 10 meter per second square, 10 meter per second square. Now 10 meter per second square of A is equal to we have 10 meter per second square. Okay, दो चीज हमको मिल गया। अब इसमें से U is equal to, क्योंकि पत्थर को जब उछालते हैं तो पहले रेस्ट में रहता है, U इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर से V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2S, क्योंकि इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, इस फॉर्मूला का उपयोग हम करेंगे। इससे हमको किस जानकारी मिल जाएगी, V यहाँ पर दिया हुआ है, U दिया हुआ है, A दिया हुआ है, S की जानकारी हमको मिल जाएगी। इससे हमको S प्राप्त हो गया। आफ्टर दैट इसका वेलोसिटी भी निकालना था, तो V बराबर U प्लस AT, इस फॉर्मूला का उपयोग इसमें हम करेंगे, दोनों का प्रयोग कर लेंगे। लगभग आंसर हमारा 1.225 मीटर, इसके लिए 1.25 मीटर आना चाहिए और इसके लिए 0.5 सेकेंड आना चाहिए। यहां से हमको T निकाल लेना है। ओके।
अब इस t बराबर वाट, t निकालेंगे इससे। अगर आपका आंसर इतना आया तो आया, नहीं आया तो फिर हमको कमेंट करेंगे। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं कुछ नए सवाल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।